Hey guys, welcome back to the channel. Welcome to College Dunia Student Connect. In this series of episode, we connect different students from different part of the world where they are studying in different universities and colleges, sharing their experiences about their lifestyle, about their experience as an immigrant, as a student. So today we have with us Mr. Hunar Garg. Welcome Hunar in this video and in this episode. We would like to know more about you. Before that, मैं एक छोटा सा comment दे देता हूँ that everybody watching this video, make sure to subscribe and like this video. कोई भी question होता है by the end of this video, just ask in the comment section and the team will help you to resolve that question and answer to you that question. So without any further delay, let's get started. Okay, Hunar. So tell us about yourself. थोड़ा सा छोटा सा intro or brief intro about yourself. Who are you? Where you from? Hi, Chaitanya. Achintya. Achintya, sorry. That's totally fine. Those totally fine. Thanks for having me here. So, hi everyone. My name is Hunar, and currently I'm doing my master's in University College London. I'm studying software system engineering, and before that, I was working as a software engineer with Ericsson in Gurgaon. And I've done my bachelor's in computer engineering from Thapa University in Patiala, and I'm mostly done with my master's now. So I'm just trying to get a job here now. So yeah, I mean, that's Okay, it. that's good. That's good. Thank you for the intro, Hunar. Let's jump to the first question, which is why this particular country and why this particular course? Why not to settle in India or any other country? So yeah, as I was doing my bachelor's, so it was pretty clear in my mind that I wanted to go abroad to pursue my studies, and जैसे जैसे मैं फिर जॉब कर रहा था इट बिकेम मोर क्लियर दैट आई वांट टू डू अ मास्टर्स नाउ आफ्टर 2 years Mhm. बिकॉज कि अब 2 साल हो गए हैं तो इट विल बी बेटर कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो विद दैट एक्सपीरियंस आई प्रॉब्ली एबल टू फाइंड अ गुड जॉब बाहर एंड इफ आई टॉक अबाउट व्हाई नॉट इंडिया आई फील कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर मास्टर्स especially for computer science they are much better in academics and practical sessions as well and overall their reputation. So the reputation really mattered for me. So hence I chose UCL. And why London? Because I had two options. Actually, I had three options: US, Canada, and London. उस Okay. टाइम पे यूएस आई हमारा आई डेंट फील कि हमारा कोई कनेक्शन है वहाँ पे सो Hmm. आई वांट टू बी अलोन इन यूएस एंड कनाडा आई डिड अप्लाई फॉर कनाडा एज वेल but since I got UCL in London, so there was nothing better than that. So Hmm. hence I chose London. That's good. That's good. Okay. That's a very rational and good decision actually. मेरे time पे it was about which country is giving you opportunity to settle first in Right. earlier stages. But Right. like in your case was that option कि मतलब यहाँ पे जल्दी settlement मिल जाएगी. हाँ ऑफ कोर्स आई मीन पहले लंदन में गया था तो वो बोलते थे तुम 4 महीने में जॉब ढूंढो और हम्म, वापस जाओ अगर तुम्हें नहीं मिली अब व्हाट दे डू वो तुम्हें 2 साल का ग्रेजुएट वीजा देंगे वंस यू ग्रेजुएट आफ्टर योर मास्टर्स और बैचलर्स तो तुम यहाँ पे 2 साल तक रह सकते हो और तुम जॉब ढूंढ सकते हो अगर तुम्हें मिल गई इफ यू गेट द स्पॉन्सरशिप यू विल गेट योर PR थिंग इन 5 years. So I mean I'm hoping to get sponsored job obviously. So I mean I think it's the same for Canada as well. It's a bit Now easier. it has become the same. Yeah, it Yeah, becomes so. I mean, there was no point of. exactly. Got Uh, it. Got it. uh, Awesome. The second question to you is how was the decision phase? Like what was going at that time in your head while making this decision कि भाई लंदन जाना है and as compared to other countries and stuff like that. ओके ओके सो एक्चुअली मुझे लंदन नहीं जाना था स्टार्टिंग में मुझे कनाडा ही जाना था तो Okay. माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो Hmm. तो as soon as I graduated from my bachelor's so I started preparing for my GRE and my IELTS exam. So but I got a bit late to apply for Okay. the applications. I didn't know कि 1 साल पहले ही तुम्हें अप्लाई करना होता है और स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में वो खत्म कर मतलब बंद कर देते हैं एप्लीकेशंस तो आई कुडंट अप्लाई सो आई वेटेड फॉर अनदर ईयर तो 1 साल तो मुझे हो गया था काम करते को देन आई थॉट कि मैं 1 साल और दे देता हूँ तो 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे रिज्यूमे पे अच्छा लगेगा एंड उसके बाद देन आई कैन गो सो एज आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई एप्लीकेशंस फॉर कनाडा one of my cousins asked me कि why don't you consider London and why don't you consider UCL specifically. So I started doing some research on it, and I really felt कि London could be an option Mhm. given the policies. And
I really chose London um because I felt was it was very multicultural. I Okay. don't know if it's true or not about Canada कि काफी सरदार हो गए हैं या फिर I don't know. I mean, I'm a Punjabi as well, but no offense to anyone. But yeah, was my if I talk about my family, how they were supportive. So उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था, तुझे जो करना है तू कर ले, तेरा जहाँ जाने का मन है तू वहाँ जा, बीट कनाडा और बीट लंदन. सो मैंने आई अप्लाइड फॉर 5 or 7 यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा एंड द सेम फॉर लंदन एज वेल. फिर मैंने बस सोचा कि मुझे जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी मिले Hmm. मैं वहाँ चला जाऊँगा. Okay. तो So the decision phase was easy. It was not that difficult. इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट बट या इट वाज आई Okay. वाज क्लियर इन माय माइंड कि मुझे क्या Mhm. करना It was clear from the start. Okay. Yep. Awesome. Okay. The third question about the proficiency, which is English test. जैसे कनाडा में तो आने के लिए it's a requirement to have certain scores in IELTS. क्या यूके जाने के लिए भी था, इस यूनिवर्सिटी के लिए भी था, was it a requirement? वैसे तो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं बट आई मीन जनरली इट्स अबाउट इट्स लाइक कि तुम 7 से ऊपर ले आओ, 7 बैंड से ऊपर एंड देन दे एक्सेप्ट इट. स्पेसिफिकली 7.5 इन आई थिंक रीडिंग और आई डोंट रिमेंबर if it was reading or writing. As per my preparation, I had a cousin who was a teacher in IELTS center. तो I was quite confident कि मैं कर लूँगा. तो आई जस्ट टुक हर हेल्प फॉर अबाउट अ वीक. तो मैंने 7 दिन प्रैक्टिस करी कि मुझे लिखना कैसे है, बिकॉज लिसनिंग और रीडिंग में आई वॉज स्कोरिंग गुड Mhm. प्रैक्टिस सेशंस. तो माई ओवरऑल ग्रेड वॉज अराउंड आई थिंक 8. That's एंड या स्पीकिंग में आई थिंक आई गॉट a bit less. I got 6.5. Reading or writing, I got 9 each, and writing, I got 7. So overall, I got 8. that's Um, nice. And you did all this preparation in one take, one exam, one try. yeah, I got it in the first try, That's and I prepared for like 7 to 10 days. oh, very nice. Then Yeah, you must be very proficient in English, मतलब because उसके तरीके से. पहले I was preparing for GRE. So Oh, okay. You were preparing for the boss, तो yeah, उसके बाद वो yeah. तो easy हो जाता है. उसके Okay. पहले I was preparing for GRE for about 2 to 3 months. Mhm. So I think IELTS was not that difficult after that. That's good. That's good. Good to know. Okay, the fourth question. Let's talk about your SOPs and your LORs. How much time it took you to make them? किसने help कराए and what sort of stuff? Sure. So I think the SOP or LOR was the most important thing in my application. Okay. Uh, it took me around 3 to 4 months to get the perfect LOR and the to get the perfect SOP. So I worked a lot on it. So starting, I took some help from an agency, which was completely waste because वो क्या करते हैं तुम्हें. I don't know if it was for that particular one. I won't take the name. So उन्होंने बस इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करे और उन्होंने मेरा 700-800 वर्ड्स का एक एसओपी लिख दिया which didn't even make sense. I didn't do any of it. So I talked to one of my friend in Canada. So she told me that कि write your SOP in a way कि वो it's a story. Yeah. It's else कि तुम क्यों बनना चाहते हो कंप्यूटर Mm. इंजीनियर या Mm. फिर तुमने क्या अचीव करा है. If you have written any papers or any of your achievements, they should feel कि you'll be a good fit for Mm. the university and you might want to do some research. I like for UCL specifically, they really prefer students who are into research and things. तो चाहे तुम थोड़ा सा ही लिख दो, चाहे तुमने नहीं भी करा, but try to mention something that might align with what they want. Mm. Mm. Also, I took advice from multiple people. I sent them my SOP. I followed some people who were in the same university doing the same course on LinkedIn. तो मैंने उनको भेजा कि please if you have time give it a read. So it didn't really work. 2-3 बंदों ने 2-3 people really replied to me and वहाँ से I thought कि I think yeah this is fine now I can just submit it. और LOR में the only problem was you have to give your LOAs to your teachers and they have to sign it. So you should be convincing enough कि वो तुम्हें sign करके दे दें जल्दी से जल्दी. You have good recommendation. Yeah. I got some recommendations from my dean in the Thapar University and my manager from Ericsson. Oh, So that's those nice. 3 recommendations चाहिए थे. Okay. But सबसे important I think is the SOP, not your So, resume, no LORs. So it took the most time and हाँ,
Got it. So you also think this depends upon university to universities, या इमिग्रेंट वीजा वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीजा लेने के लिए बहुत जरूरी है एसओपी? I think SOP तो I think it's a requirement for everyone to ओके, give them SOP, इट्स अ not just for जेनरिक रिक्वायरमेंट. generic requirement. Even if you're UK citizen या फिर Canadian citizen जो भी है, मतलब तुम्हें देना ही पड़ेगा, हम्म. वरना वो तुम्हें किस बेस पे जज करेंगे कि तुम्हें क्यों आना है यहाँ पे, राइट. करना क्या चाहते हो यहाँ पे आके। या सो वाज देयर एनी क्लॉज, जैसे यहाँ पे तो होता है कि यू हैव टू राइट दैट यू विल बी गोइंग बैक टू इंडिया वंस यू आर डन विद योर स्टडीज? नो, आई मीन देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ऐसा ओके. कुछ तुम्हें वहाँ पे ओके मेंशन ओके ओके, करना है। मतलब वो यहीं पे चल रहा है कनाडा में ही चल रहा है. ओके. अच्छा, आई डिडंट नो कि कनाडा भी। या मतलब ओ, यहाँ पे यू हैव टू मेक एसओपी इन सर्टेन वे दैट यू हैव टू शो द इमिग्रेशन ऑफिसर दैट यू विल बी गोइंग बैक टू योर कंट्री. ओ, आई And डिडंट नो। they literally ask you to open the SOP at the airport and then कि भाई उसमें क्या लिखा है and what are you saying, are they मतलब Maybe that was contradicting? the reason I got rejected in all of the universities in Canada. हो सकता है, could be. हाँ, maybe I didn't know that. What did you wrote you are going to settle here? I didn't write any of that कि, but मैंने ऐसे भी नहीं बोला कि I want to go back या फिर I want to stay here. अच्छा. Nothing, ऐसा कुछ Okay, okay. मेंशन नहीं था, बट आई जस्ट मेंशन कि मैं क्यों आना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ Hmm. टोरंटो में या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। Okay, okay. बस जस्ट So you दैट। tried British University of British Columbia as well, UTM. आई ट्राइड 7 यूनिवर्सिटीज इन Oh, कनाडा। that's good. या तो Okay. टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया, मैगिल, Oh, very nice. और दो तीन और थी विच वर लो टियर, बट आई डोंट नो, आई गॉट रिजेक्शंस इन ऑल ऑफ देम। I feel नॉट very happy for you that you got rejected. So sorry for that, no offense. But trust me, the level of these universities now have come quite down now. Or London UCL is a perfect match, I think. And I'm sure you are happy with your decision at the end. वेरी हैप्पी अबाउट इट। Chalo, good to know, bro. Awesome. Thank you so much, Hunar, for the information about SOP. Main question here is now the next question is talk about your university. How was it? Somebody planning to go in 2026, is it relevant? Thoda sa try to convince people maybe or tell the truth about university. How was it actually? So, um, first of all, I mean, the first thing that a student should know is कि तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, एंड यू जस्ट गो टू देयर करियर पेज एंड लुक एट द कोर्सेज कि जो भी हैं वहाँ पे। उसके बाद ट्राई टू सी, मतलब जो मैंने करा था, मैंने रैंकिंग एक तो ओवरऑल देखी थी कि वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, और उसके बाद स्पेसिफिक टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट की रैंकिंग है। सो बोथ ऑफ देम वर क्वाइट हाई। तो वर्ल्ड रैंकिंग इसकी थी उस टाइम पे 8th या 9th। Right. और व्हेन लास्ट ईयर आई गेस। Okay. सो हाँ, व्हेन आई अप्लाइड तो उस Okay. टाइम पे इसकी 8th या 9th थी, अब भी शायद उतनी है, दे मेंटेन्ड इट। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आई थिंक इट वाज बिटवीन 20 to 25। तो आई थॉट कि इट्स गुड इनफ कि सही है, यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद अम, हाँ, उसके बाद यू नीड टू जस्ट सी कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, बिकॉज देर आर क्वाइट डिफरेंट कोर्सेज। द कोर्स दैट आई अप्लाइड फॉर वॉज MSc इन कंप्यूटर साइंस, तो आई गॉट रिजेक्टेड इन दैट Oh, okay. बिकॉज उसका नाम ही बस MSc इन कंप्यूटर साइंस है। अपेरेंटली इट इज़ अ कोर्स फॉर स्टूडेंट्स हु वांट अ करियर चेंज, जिनको कंप्यूटर का कुछ नहीं पता बट वो कंप्यूटर में आना चाहते हैं। That's तो strange. Okay. गॉट रिजेक्टेड बाय, दे सेड दैट कि दिस इज अ कोर्स विच यू, मतलब तुम कुछ भी इससे गेन नहीं करोगे, तुम्हें सब कुछ आता है इसमें जो भी हम सिखाएंगे। तो आई अप्लाइड अगेन। इस बार मैंने सब कुछ अच्छी तरह पढ़ के करा अप्लाई, पहले तो बस मैंने नाम देखा और कर दिया था। उसके बाद फिर उसके बाद यू जस्ट गेट योर ऑफर लेटर, यू दे से कि तुम अपनी इतनी एडिशनल अमाउंट पे कर दो टू बुक योर सीट। How much is एंड the fee for the university that you're in? And the माई फीस इज अराउंड 37,500। आई जस्ट चेक्ड, उन्होंने अभी 39,500 पाउंड्स कर दिया। per year? पर यहाँ पे एक्चुअली सारी मास्टर्स, सारी MBAs, आई थिंक दे आर ऑल फॉर 1 ईयर। Okay. Or 1 year means 8 months? अराउंड 8 मंथ्स, यस। Okay. All right. Okay. 8 मंथ्स भी नहीं, आ मैं तो बोलूँगा 7 मंथ्स ही है, 6 या 7 मंथ्स, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी अप्रैल में ख़त्म हो गई थी, सितंबर में तो मैं आया था। उसके बाद 2 महीने मेरे एग्जाम्स चले हैं, अब मेरी डिसर्टेशन है। Oh my God. या काफी जल्दी खत्म कर दी फिर तो. Okay. हाँ, तो इट्स मोस्टली, हाँ, so that was the fees. Anything else you would want to know? Extracurricular items यहाँ पे, I mean, I once जब मैंने चेक करा कि क्या extracurricular items हैं, you name the sport, it is here. It Okay. is not that कि it will be on the campus, it might be a bit far,
but you can obviously access it because you're a student. There's a gym in the building. It's quite big gym. सब वहीं पे जाते हैं. Mm-hmm. What But I about the don't. faculties and everything? How are they strict? मतलब हाँ, strict हैं faculties, academically? they are, I would say they are very, if you're a master student, so जैसे इंडिया में they won't really answer to your questions अच्छे से, even if it is a stupid question. But यहाँ पे they really go deep into the questions and it is, मैंने देखा यहाँ पे कुछ तो मतलब teachers they go into a long discussion and debates, क्लास में ही लगे पड़े हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं. और ऑल्सो कि मतलब मेरा जो कोर्स है उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रीवियस फील्ड में टीम लीड्स रह चुके हैं, उनके साथ साथ 8 8 साल का एक्सपीरियंस है. That's nice. हाँ, तो इट वाज क्वाइट न्यू कि एक क्लासरूम के अंदर इतनी डिस्कशन हो रही है कोई टॉपिक को लेके. Okay. एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई अटेंडेंस का कोई ऐसे सीन है. दे डू से कि 60 70% मेंटेन करो, बट यू कैन जस्ट टैप योर आईडी कार्ड एंड अच्छा. इट्स Okay. नॉट इम्पोर्टेंट लेक्चर, यू कैन जस्ट स्किप इट. So एंड overall, what's the life in the university? Is it okay? Is it happy? Are you happy with with that culture and sort of? I would say कि it's quite busy Okay. because all the time if you're someone की जो जॉब ढूंढने नहीं आया है, नॉर्मल चिल करने आया है, इट्स वेरी चिल फॉर यू. तुम घूमो फिरो ऐश करो और पढ़ो भी साथ साथ में, सब मैनेज हो जाता है. बट इफ़ यू आर समवन की जो जिसे जॉब भी चाहिए, जिसे थोड़ा बहुत सेटल भी होना है, चाहे 1 2 साल का ही होना है, तो थोड़ा मुश्किल है. हाथ पैर बिकॉज मारने पड़ेंगे पहले से. हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तुम्हें जॉब का अलग से पढ़ना है, तुम्हें यूनिवर्सिटी का अलग से पढ़ना है. और स्पेसिफिकली फॉर मी मेरे 6 एग्जाम्स थे रिटर्न, जो कि आई डोंट थिंक कि किसी अब उसमें होते हैं. मतलब सबके Got या it. तो मिशन ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं वो हैं. Yeah. बट आई हैड 6 डिफरेंट एग्जाम्स. तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे टाइम मिला होगा एक्सप्लोर करने का. ऑल्सो आई फील इफ़ यू आर डूइंग अ बैचलर्स, तुम्हारे पास 3 4 साल होते हैं तो ज़्यादा टाइम मिलता है. मास्टर्स Okay. में इतना नहीं मिल पाता तुम्हें. बहुत जल्दी निकल जाता टाइम. चाहे कोई भी मास्टर्स है, वो नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू माई कंप्यूटर साइंस. Hmm. सो Got it. या was mostly this. ठीक है. um, Awesome. Yeah, we covered almost every part. Yep. Awesome. Good to know. Okay, my seventh question to you is, what about your accommodation? How is your accommodation look like? Where you living? क्या मुश्किल है वहाँ पे accommodation ढूंढना बच्चों के लिए and what sort of things? And sorry, also, what's your expense per month apart from your tuition fees? श्योर श्योर. तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द अकोमोडेशन फर्स्ट. तो जैसे कि हम एप्लीकेशन प्रोसेस में होते हैं, वंस यू नो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी फाइनल हो गई है, सो यू ट्राई टू फाइंड एन अकोमोडेशन कि जो उसके पास हो. क्योंकि जो यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस है, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड. यू वुडेंट वांट कि तुम रोज़ ट्रेन लो या बस लो. तो तुम्हारे एक टाइम के बस के 300 400 रुपये लग जाएंगे, और वापस जाने के 300 400 फिर से. Oh my God. Okay. दैट इज ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज जस्ट फॉर योर ट्रैवल, जस्ट फॉर द I, यूनिवर्सिटी एज वेल. that's the same here as well. Like we spent almost $3 एक टाइम का tap, and then next time tap भी $1 $3 का है, तो it's sort of $6. या तो 3 CAD इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू, हमारे 3 पाउंड इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 6 CAD. तो हमारा डबल हो गया, ऐसे लगा लो. Ah, okay, okay. Yeah, it's expensive then. Oh shit. Okay. सो जैसे व्हेन यू सर्च ऑनलाइन कि अकोमोडेशंस इन लंदन, तो ऑब्वियसली आई वुड से कि तुम स्टूडेंट अकोमोडेशन ही लो, क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारा नेटवर्क बनता है, तुम Hmm. नए लोगों से मिलते हो, तुम्हें नई चीज़ें पता चलती हैं. और 2 3 साइट्स, जैसे कि एक वन स्टूडेंट साइट इज स्टूडेंट लिविंग. सो मैंने उससे काफ़ी, मतलब आई वॉज कनेक्टेड टू एन एजेंट, सो दैट वाज समथिंग रियली हेल्पफुल. आई गॉट टू नो अबाउट द प्राइसेस एंड कि कितनी दूर होगा. उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. Another site I just surfed through was Ripple Right Move. If Okay. I don't really remember the name, but at the end, तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी तुम्हें कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करती है. सो उसमें सिर्फ यूसीएल के स्टूडेंट्स ही होंगे मोस्टली. एंड सो आई ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज कि वो थोड़ा सस्ता था कंपैरेटिवली, ऑल्दो इट्स सो एक्सपेंसिव हियर. आई विल टेल द प्राइस इन अ फ्यू मिनट्स. हाँ, तो यूनिवर्सिटी, माई यूसीएल हेल्प मी टू गेट माई accommodation. Okay. And it's like a 30-minute walk from the place, so I just try Hmm, to, not bad. sometimes if it's too cold I just Okay. take the bus. So Once somebody is getting enrolled in the college or university, they can just apply on the portal and probably get the accommodation very easily. It's not that big हाँ, scene. Okay. कुछ टाइम लगेगा तुम्हें ढूंढने में सही accommodation, but you'll eventually figure it out. You have Hmm. multiple options, try Okay. not. मतलब कोई ऐसी हाउसिंग क्राइसिस नहीं चल रही लंदन में जैसे कनाडा में चल रही है. हाउसिंग क्राइसिस भी है, मतलब तो फिर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ओ. मेरी accommodation है
वी आर पेइंग अराउंड कितना, £315 पर वीक। तो वो हो गया ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये हो गए वो या ओके। per week। हाँ। तो एक महीने के तुम्हारे, तुम लगा लो हिसाब, 1,30,000, 1,40,000 रुपये हो गए। सो इफ़ यू गो, लंडन इज डिवाइडेड इनटू जोन्स। तो आई लिव इन zone 1 विच इज़ ऑलमोस्ट सेंट्रल, बिकॉज वो फिर यूनिवर्सिटी के पास है। दैट वाज मच मोर कि मतलब सही था कि इस पास ही लो, चाहे तुम्हें थोड़ा महंगा मिल जाए। या अगर तुम थोड़ा बाहर बाहर जाते रहोगे तो आई वुड से कि तुम्हें 250 का भी मिल जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 25,000 रुपये। तो 1 लाख तक तुम्हें मिल जाएगा। 1 लाख पर मंथ इज द, आई वुड से कि यू शुड बी, अगर तुम्हारा सेंट्रल में है, हम्म। इनफ। इससे सस्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ओके, गॉट इट। सो ये तो अकोमोडेशन का। एंड माई एक्सपेंसेस, सो द बिगेस्ट एक्सपेंस एज आई सेड कि वही है ट्रैवल रेंट। का तुम्हारा। ओ ट्रैवल रेंट का, सॉरी। रेंट का तो वो तो फिक्स्ड ही है, तुम्हें देना ही है। रेंट ट्रैवल फिर तुम्हें बहुत सोच सोच के करते हो कि मैं आज जाऊँ कि ना जाऊँ, कहीं भी even घूमने भी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कि आई थिंक ग्रोसरीज आर गुड इनफ। बाहर भी तुम खा ही सकते हो। मतलब ओवरऑल एक्सपेंस आई वुड से कि तुम्हारा इज अराउंड 400 से 600 के बीच में आएगा, डिपेंडिंग ऑन तुम कितना बाहर जाते हो। बट या This फोर्टी is per थाउजेंड month, 400 to 600 pounds per month, दिस इज पर including your rent, including your grocery, your transport, and every other miscellaneous just thing. the transport and dining out and eating in groceries, drinking and stuff, not your rent. Mm-hmm. Rent is totally different. Do you prefer cooking home or go out? I I used to cook a lot before, अच्छा। but अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। टाइम के बाद ना यू हैव टू गेट यूज्ड ऑफ मे बी बाहर का खाना और हाँ। सम टिफिन सर्विस और समथिंग लाइक दैट। तो अभी जैसे 4 बज गए हैं, अभी आई जस्ट हैड 2 cups ऑफ कॉफीज एंड 1 बनाना और समथिंग। अभी और खाऊंगा कुछ तो देखता हूँ। हाँ। Okay, awesome. All right, Hunar. Coming to the next question, very important. What are the scenes about part-time jobs? Is it easy to get there? Part-time job? सो आई वुडंट से इट्स इजी, एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम फिर कितना अप्लाई करते हो। क्योंकि पहले क्या था कि तुम, यू गो इनटू द स्टोर, यू आस्क इफ यू हैव अ जॉब एंड दे विल से कि तुम ट्रायल शिफ्ट दे दो, और फिर इफ दे फील कि तुम ठीक हो तुम रख लेंगे। But I tried going to some stores. Mhm. I tried just walking in and giving them my resume. It didn't really work. They said सबने यही बोला कि तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, उसके बाद वो दे विल शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूमे, फिर दे विल कीप एन इंटरव्यू, उसके बाद वो देखेंगे। तो मैंने 2-3 इंटरव्यू भी दिए स्टार्टिंग में। आई वाज टारगेटिंग रिटेल की जॉब्स, कोई भी ऐसे। आई वेंट टू वन स्टोर एडिडास, और फिर एक यहाँ पे ड्यून लंदन है। तो वो सारे कपड़ों के है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें फिर इतना काम नहीं करना पड़ता, इतना वो भी नहीं होता, रश भी नहीं होता। सो आई वाज जस्ट टारगेटिंग कि मैं अगर 20 घंटे काम करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द लिमिट, उससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं सकते यहाँ पे एज ए स्टूडेंट इन अ वीक। तो आई वाज टारगेटिंग कि मैं एक महीने के शायद 800 पाउंड कमा लूंगा इफ़ आई वर्क 20 आवर्स। इवन आई, मैं 15 मतलब घंटे भी काम करूँ एक वीक में, तो भी मतलब मैं 600 से 800 के बीच में मैंने सोचा था, जिससे मेरे रोज़ के एक्सपेंसेस निकल जाएं, मंथली एक्सपेंसेस। और शायद मैं थोड़ा कुछ सेव कर लूँ, फिर Hmm. शायद फ्यूचर में शायद घूमने जा पाऊँ। तो दैट वाज माय थिंकिंग कि अगर टाइम मिलेगा तो देन आई डू इट। बट कवरिंग योर फीस, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अच्छा, बिकॉज हाँ, मतलब इज दैट रियल कि पार्ट टाइम जॉब से फीस निकाल सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की एंड। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज तुम 20 घंटे ही काम कर सकते हो, तुम्हें 12 पाउंड 1 घंटे के मिलेंगे, तो तुम्हारे 800 पाउंड हुए। उसमें तुम अपना, मतलब फीस तो मुझे नहीं लगता कोई निकाल पाता है। तुम अपना रहने का खर्चा भी नहीं निकाल निकाल पाओगे, द रेंट्स। ओ माय गॉड। अपने डेली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कोई भी उससे ज़्यादा कर So, पाएगा। so somebody who is planning to go to UCL in next year or this year, they have to know this thing कि भाई तुम्हें हो सकता है इंडिया से पैसे मंगाने पड़े। हाँ, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओके। या हाँ, या फिर तुम अपनी फीस पहली अकोमोडेशन की और यूसीएल की एक बार में पे कर दो, हम्म। इंस्टॉलमेंट्स, फिर तुम्हें वो शायद चार्ज वगैरह ना लगे एक्स्ट्रा जो लगता है आर फॉर यू द डूइंग कन्वर्ट। एनी पार्ट टाइम जॉब्स राइट नाउ? या लाइक आई मेंशन कि मैं जैसे ढूंढ रहा था, बट देन आई रियलाइज्ड कि माय कोर्स इज अ बिट टफ एंड आई डोंट हैव द इनफ टाइम। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मेरे फिर एग्जाम्स भी थे आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर एंडेड एंड माय सेकेंड सेमेस्टर एंडेड। तो अभी मेरे एग्जाम्स हुए थे। तो अभी मैंने सोचा था कि मेरे पास 2-3 महीने हैं अभी, तो मैं अभी दोबारा शायद कर सकता हूँ। तो मैंने अभी दोबारा ट्राई करा।
दो तीन स्टोर्स में जाके अप्लाई करके ऑनलाइन। बट देन अगेन सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी, तो वो पार्ट टाइम की तरह तो नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट, आई एम नॉट पेड। हम्म। तो आई रियलाइज कि मैं 5 बजे तो फ्री होता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं ओ। पहले फ्राइडे काम करूँ, फिर मैं जॉब्स के लिए हम्म। फुल टाइम के लिए, और फिर मैं सैटरडे संडे को पार्ट टाइम करने रहूँ। तो दैट वाज समथिंग कि मैंने सोचा कि 3 महीने और हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बट अभी आई शुड बी फोकसिंग ऑन माई फुल टाइम फुल टाइम बिकॉज जॉब्स, इज या। मोर इम्पोर्टेंट। Okay, okay, awesome. नहीं, I agree with you. A lot of people think in a same certain way कि भाई full time पे better करना अच्छा है, better focus करना rather than just part time. Because part time jobs also sometimes takes you to a path जहाँ पे you're not very much interested, and you get distracted a lot. इंटरेस्टेड भी, और तुम अपना फिर टाइम उस चीज़ पे दोगे जो कि दैट इज नॉट, विच इज़ वेरी टेम्परेरी। तुम टेम्परेरी कुछ पैसे कमाने के चक्कर में यू लूज ऑन टू अप्लाइंग टू फुल टाइम जॉब्स, Right. फिर यू यू गेट स्टक इन अ लूप। तो Hmm. दैट इज आई डेंट वांट। Okay. I will ask you my next question in this because we are talking about jobs. The full-time job scenario क्या क्या है वहाँ पे? How can one apply for a full-time job? कैसे मिल सकती है? And your advice to students कि भाई UCL से निकलने के बाद और while in it, how can you get a full-time job? तो यहाँ पे दो तीन रास्ते हैं तुम्हें जॉब लेने के। तुम अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, सो सो एक्चुअली देर आर टू थिंग्स। एक होती हैं ग्रेजुएट जॉब्स, एक होती हैं विच आर फॉर सम एक्सपीरियंस पीपल। तो ग्रेजुएट रोल्स यहाँ पे 1 साल पहले मतलब खुल जाते हैं। इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग इन 2025, तो 2024 में खुल जाएंगे, यू अप्लाई फॉर इट। और फिर 25 में व्हेन यू विल ग्रेजुएट यू विल नो कि तुम्हारे पास जॉब है, वो तुम्हें 6 महीने पहले पता होता है। So you can be very chill in your whole masters if you're able to crack it. Right. At the same time, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था ग्रेजुएट रोल्स के लिए अप्लाई करना, इवन दो हैड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था पिछले साल अगस्त में, इवन बिफोर आई वेंट टू लंदन, क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। Okay. तो मैंने करा काफ़ी अप्लाई। सो आई आई यूज द मेथड कि मैं 100:1 की रेशो रखूँ। अगर मैं 100 जॉब्स अप्लाई करूंगा तो मुझे शायद उसमें से एक इंटरव्यू एक, आ जाए। yeah. हाँ, तो मैंने ये रखा था रेशो, और मैंने दिए 5-6 इंटरव्यूज। इवेंचुअली डिडंट वर्क आउट, बट अभी देर आर सम इंटरव्यूज लाइंड अप, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बट नाउ आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ बिट एक्सपीरियंस रोल्स एज वेल, बिकॉज ग्रेजुएट रोल्स में सब अप्लाई करते हैं, Hmm. सारे एलिजिबल हैं, और इट्स वेरी competitive। एंड जो थोड़े बिगर रोल्स हैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 या 2, they might not be that competitive. So yeah, Your that's mostly it. मैं मतलब my question would be कि what is the salary range or CTC for a person who is a very academically good in your field? Suppose somebody passed out और बहुत अच्छा उसने काम किया है पढ़ाई में भी, now he got a good job, तो क्या best package है if somebody can do a good job? So it depends on two things. One is your role, like graduate roles के लिए the um, the CTC would be a bit low, but also it depends on the company. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक कंपनी अभी उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी सीटीसी की। तो आई सेड कि आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 45 to 50, बिकॉज सो दे वर लाइक कि नहीं, वी कांट पे यू दैट मच, इट्स अराउंड 35,000 pounds। तो विच आई फील कि इज वेरी लेस अकॉर्डिंग टू कि जितने तुम्हारे एक्सपेंस हैं तुम बस हैंड टू माउथ ही कर पाओगे उतने में। तो Right. एट द सेम टाइम कि एक ब्लूमबर्ग कंपनी है, तो उसके साथ मेरा इंटरव्यू था इन जान। सो उनका सीटीसी वाज अराउंड 80। Oh. तो दैट इज द वास्ट डिफरेंस बिटवीन टू कंपनीज। Hmm. रोल्स ग्रेजुएट हैं, बट इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी आई Company to फील। company. हाँ, Okay. मतलब का आई वाज शॉक्ड कि उसका गूगल और अमेजोन से भी ज़्यादा है व्हाट दे पे हियर इन लंदन फॉर ग्रेजुएट्स। आई That's थिंक अमेजोन और गूगल का इज अराउंड 40, नहीं 55 to 70 के बीच में है, 1000 pounds। तो आई डिड अ कैलकुलेशन में माइंड कि अगर किसी की 80,000 सैलरी हो पाउंड्स, तो तुम्हें हाथ में अराउंड 4500 आएगा, hmm. तुम्हारा 2,000 होगा, Right. और विल बी एबल टू सेव अराउंड 2 lakhs to 3 lakhs के बीच में। तो बट 80,000 आई वुड से कि इज़ अ वेरी गुड Very सैलरी। good salary. इतनी एक्सपेक्टेशन सबकी होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सुनते आ रहे हैं कि यूएस में इतनी सैलरीज हैं, कनाडा में ज़्यादा है। Yeah. हमारी
कंपैरेटिवली बहुत कम होएगी सैलरी, इवन फॉर अ हम्म। इवन इफ यू आर वेरी गुड एट इट। और ओके। गेटिंग जॉब इज टोटली, आई वुड से कि तुम्हारे लक पे है और तुम्हारी मेहनत पे है। उस दिन पे तुमने तुम्हें क्या क्वेश्चंस पूछ लिए और तुम्हें आते थे कि नहीं आते, तो दैट इज वेरी तो लक मतलब बेस्ड। ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो नथिंग लाइक कि भाई जॉब, अब मतलब ग्रेजुएट हो गए तो जॉब पक्की है, लाइक इस यू नहीं नहीं, कैन से। बिल्कुल। मैं तो मतलब आप ये लगा लो कि पिछले साल का जो बैच था उसमें से सिर्फ एक बच्चे को जॉब मिली थी हमारे कोर्स में। ओ माय गॉड, ये तो हाँ। काफी कम रेशियो है। हाँ, तो इवन दो वो बोलते हैं कि इस बच्चे ने अपना स्टार्टअप कर लिया, वो कर लिया, पर जॉब तो एक एक को ही मिली ना। उनके मतलब दे हैव सम नंबर्स हाँ, टू वो शो यू। रिटेनर और कन्वर्जन में तो जॉब वाला एक ही हुआ, एग्जैक्टली exactly. तो यही सीन है। अभी Oh, भी हमारे जो भी बैच चल रहा है, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज तो आ रहे हैं सबको, बट अभी तक जॉब सिर्फ एक की ही लगी है। और सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं सितंबर खत्म होने में। तो नॉट रियली श्योर कि hmm, मतलब जॉब मार्केट भी इट्स वेरी बैड राइट नाउ। yeah. Overall, वेरी it's bad. बैड। एक लास्ट क्वेश्चन इन दिस जॉब कैटेगरी इज कि सपोज इफ समबडी इज डन विद देयर टाइम एंड एवरीथिंग और उनको नहीं मिली जॉब एट द एंड, बहुत ट्राई किया नहीं मिली, एंड नाउ दे आर डन विद देयर वर्क परमिट और जो भी यू कॉल इट ओवर देयर, तो क्या उसके बाद वापस जाना पड़ेगा? आई मीन मास्टर्स के बाद तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है। ओके, इट्स तो डन, दो साल खत्म हो गए, तूने बहुत हाथ पैर मार लिए, नहीं मिली जॉब। 2 साल के बाद नहीं मिली तो तुम फिर तो तुम्हें वापस ही आना पड़ेगा। ओ फिर माय तो कोई गॉड। और अच्छा, कोई एक्सटेंशन वर्क परमिट नहीं है, कोई अलग से वीजा नहीं। एक्सटेंशन नहीं, ओके। I think there's something called self-sponsored visa, I think, but it's for something business वगैरह के लिए है वो। अच्छा, उसमें ओके। a lot of money to be invested here. I'm not really sure, मैंने वो अभी देखा नहीं है I hope कि you don't even explore that. I don't Yeah, bro, yeah. get your PR and you can settle so sure. जल्दी। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे। इवन इफ द कंपनी कैन स्पॉन्सर यू, वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम अपने पहला ग्रेजुएट वीज़ा लो। ग्रेजुएट वीज़ा वही है 2 साल वाला जो तुम्हें लेना पड़ता है। तो ओह। 2 साल के बाद वो बोलेंगे हम तुम्हें स्पॉन्सर कर देंगे। तो उसके बाद जब वो स्पॉन्सर करेंगे, उसके 5 साल बाद तुम्हें जाके वो मिलेगा, तो टोटल 7 साल हो गए। आप आप समझे? मैं समझ गया, मतलब हाँ। या मतलब दे वांट, क्योंकि ग्रेजुएट वीजा में तुम्हारे अच्छे खासे पैसे लगते हैं, वो 2 साल का वीजा लेने में भी, वो भी 3-4 हज़ार पाउंड का है। या 3-4 तुम्हारे उसमें लगेंगे। सो दे डोंट से कि हम तुम्हें अभी स्पॉन्सर कर देते हैं, तुम्हारे भी पैसे बचे और टाइम भी बचे। सो मोस्ट कंपनीज वोंट डू दैट। people listening to this video so far, watching this video so far, I would like to mention this कि ध्यान से आना यूसीएल हाँ। यूनिवर्सिटी में। ये हाँ। these things look very good from outside, Yeah. but once you step in it, there's a total different world. I think the grass is always greener on the other side. जस्ट बिकॉज वो कॉलेज अच्छा है, जस्ट बिकॉज वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, मेरा दोस्त वहां पढ़ रहा है, एंड नेम बहुत है, डजंट मीन कि तुम्हारी जॉब श्योरिटी है उस चीज की। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर कोर्स इन कॉलेजेस, कज बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम भी लगता है। सो बट थैंक्स लॉट हुनर, आंखें थोड़ी सी खोलने के लिए सबकी, एंड रियली अप्रिशिएट दैट। Yeah. Thanks a lot for sharing a real knowledge, real insight about job market, bro. Because I think a lot of people don't know much about it. उनको वहीं जाके पता चलता है. So sort of a heads up for them, everybody. Considering that, let's go to our last question. Your advice to the aspirants who are applying, जिसको भी 2026 में आना है या आगे, who's planning to. तो माय एडवाइस इज कि अगर तुम्हें बाहर आना है, सो तुम इस माइंडसेट से मत आना कि तुम यहाँ पे आके, पहले तो यू शुड बी क्लियर कि तुम्हें आना क्यों है। Yeah. तुम्हें यहाँ पे सेटल होने आना है, या फिर तुम्हें सिर्फ 1 साल के लिए आना है या 2 साल के लिए आना है, जितने भी टाइम के लिए आना है। तो तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब यू 100% श्योर, बट यू शुड नो योर प्रायोरिटीज, कि तुम्हें पैसे कमाने हैं या तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, या व्हाट यू आर लुकिंग फॉर Yep. एग्जैक्टली। एंड यू शुड डू योर रिसर्च कि तुम्हारी फील्ड कितनी, मतलब कितनी जॉब्स हैं उसमें, क्या क्या एक्सेप्टेंस रेट है, कितना मुश्किल है उसमें मिलना तुम्हें। क्योंकि फॉर मी इट वॉज क्वाइट क्लियर कि मुझे एक्सपोजर चाहिए था। मैंने तो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स में ही सोचा ही हुआ था कि मुझे तो जाना ही है बाहर। तो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी। बट आई नो सम पीपल की हु जस्ट कम हियर एंड वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फिर वो 5-5 दिन एंड फुल टाइम के लिए वो अप्लाई नहीं करते, और वो सिर्फ 2 साल यहाँ पे रह के ग्रेजुएट वीज़ा में फिर वापस चले जाते हैं, बिकॉज उन्होंने कोशिश करी बट उनको मिला नहीं। और मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको नहीं मिलेगा। Oh my God. Okay. हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और तुम्हें फिर खाना भी बनाना है, तुम्हें सारे काम, लॉन्ड्री, ग्रोसरी, तुम्हें सारे खुद करने हैं। और ज़रूरी नहीं है सब कुछ आसपास हो, इट कुड बी वेरी फार। सो दीज आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स की
तुम यहाँ पे सिर्फ ऐश करने नहीं आ रहे हो, तुम्हें यहाँ पे हम्म बहुत काम खुद करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो आई थिंक एक्सपोजर वाइज यू डेफिनेटली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं जब इंडिया में था आई यूज टू फील कि भाई क्या ही फर्क होगा, सेम ही तो है, क्या ही मतलब। बट आई रियली फील कि मतलब इट्स अ बिग डिफरेंस। हम्म एंड आई वुडेंट कंपेयर इंडिया और बाहर का, ऐसे तो कुछ भी, सब दोनों के अपने अपने पर्क्स हैं, but there's definitely a difference. हम्म And if you're able to crack something here, uh, it can't be matched, to be honest. And or क्या advice? मतलब uh, anything you wish you'd know before coming to this country? um to be honest, मेरे I had a lot of friends जो कि यहाँ पे पढ़ते थे पहले, so Okay. told me a lot about पहले से ही। एंड आई वॉज रेडी कि आई वॉज जस्ट शॉक्ड अबाउट वन थिंग, जो सैलरी रेंज है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कम मिलती है। और आई न्यू कि यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बट बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई थॉट कि शायद आराम से मिल जाए मुझे, थोड़े हाथ पैर मारूंगा मिल जाएगी। बट ये दो चीज़ें हैं कि इतना भी ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है जॉब मिलनी, Okay, बहुत so हाथ पैर मारने पड़ेंगे बहुत, मतलब। और सैलरी भी तुम्हें शायद इतनी अच्छी ना मिले कंपैरेटिवली टू यूके, सॉरी कंपैरेटिवली यूएस और कनाडा, वहाँ पे द सैलरीज आर मच ग्रेटर। it's difficult to navigate your like sorry, is it difficult to navigate your life in university? मतलब as a या student. आई थिंक इट्स ओके, Okay. it depends. Oh yeah, I mean for me it was quite okay, but I was really happy with my course, to be honest. I feel कि जो मैंने वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एक दो साल में नहीं सीखा उतना मैंने यहाँ पे सीख लिया था, दो तीन प्रोजेक्ट्स में बनाते हुए। और आई रियली फील कि मतलब मुझे अब काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजीज जो हमारे यूज़ होती हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई नो अबाउट देम। एंड ऑल्सो तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, तुम नए लोगों से मिलते हो, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल। एंड व्हाट एल्स, थिंक दैट्स अबाउट इट। That's the all. Okay, my last question is, okay, how much would you rate this university out of 10 या in terms of study, curricular, academics, everything? I would rate it about 7 or 8, Okay. because I think it's करिकुलर इज, तुम्हारे पास फैसिलिटीज सारी हैं, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना कर सकते हो, तुम Right. कितनी सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हो, Hmm. सारी हैं तुम्हारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सम बिल्डिंग्स आर वेरी गुड, जो कि कंप्यूटर की हैं, obviously they provide you all the big labs and all with Macs in there and good laptops, so that is I have no issue with। थोड़ा इनका मुझे ये नहीं अच्छा लगा करिकुलम का, हमारे क्या था फर्स्ट सेमेस्टर में दे टीच यू 4 सब्जेक्ट्स, सेकेंड सेमेस्टर में दे टीच यू 4 सब्जेक्ट्स अगेन, एंड वो फिर 8 के 8 एग्जाम्स एंड में होंगे। Oh, ये कौन सा? हाँ, Weird. तो This is weird. that's pretty weird, or that was a bit tough phase for all of us। and but it's okay, it's एक यहाँ पे इतने एग्जाम्स मुश्किल नहीं होते हैं, तुम पढ़ोगे अच्छे से थोड़ा सा तो तुम विल बी एबल टू क्रैक। बट या, और एक आई वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब आई न्यू कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा यूनिवर्सिटी में कि टू गेट अ जॉब, या फिर हमारी लगवा के नहीं देंगे प्लेसमेंट, यहाँ पे प्लेसमेंट तो होती नहीं है। Oh, बट right. Yeah. हाँ, बट देर आर सम कॉलेजेस हु हेल्प यू इन दैट, सो इम्पीरियल इज़ वन ऑफ देम, वो तुम्हारी इंटर्नशिप लगवा के देगा। सो मुझे सिर्फ अभी इम्पीरियल का ही पता है, बट इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर यूसीएल भी ऐसा कुछ करे। बट ओवरऑल दे हैव अ प्रोग्राम जिनमें, लाइक आई मेंशन इन द स्टार्टिंग की आई एम वर्किंग विद ब्लूमबर्ग नाउ, ऑल्दो इट्स अनपेड, बट वो मेरे सीवी में जाएगा एंड आई कैन पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन एज वेल, Right. बिकॉज हम जाते हैं ऑफिस में, वी वर्क एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट रोल एंड इट्स नॉट पेड, but the experience matters, I guess. So in the long run, it will help me. So this was provided to me by UCL. Hmm. I Okay. mean, overall, I'd say it's almost 7 or 8, even 9. Hmm. Awesome. Good to know. It's a very good reality check that you showed us Yeah. today because मुझे भी नहीं पता था, to be very honest. I always thought कि भाई UCL है, so cool, so good. People would be getting a lot of jobs, doing startups, multiple business, but the reality is a bit harsh as always. Right. So awesome, yeah. Good to know that. Thanks a lot, Hunar, for giving all such insights about UCL.
I finally learned today a lot about के दूर दूर के ढोल सुहावने क्योंकि ऐसा लगता था मुझे भी that it's the real play जो हो रहा है, but that's not the case. I think this video will help a lot of students and aspirants who are applying and coming to this university in future. Guys, अभी तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करना and make sure you like this video. कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, and हैंडल भी डाल देंगे हुनर का. If you want to go and check out his profile handle, you can just follow him and ask him questions about the university as well. Again, Hunar, thanks a lot for coming to this session and helping everybody learning a lot about this university. And with this, guys, wrapping up this video at the end, and hopefully to see you guys in next episode. Adios. Thank Bye bye, thank Hunar. you. Bye. Have a good day. You Bye. too.